Good morning, student. Today we start with your paper first, Life and Diversity of Animals, unit number 2 and point 3.1, that is gametogenesis and type of eggs. First of all, what is gametogenesis? Gametogenesis is a process of production of gametes that gamete produce in gonads. And gametes are two types: male gamete, that is sperm, and female gamete, that is a egg. Production of sperms is called as it's the process of spermatogenesis and occur in a testes, and production of egg or ovum is called oogenesis, means that process of formation of egg is a oogenesis process and that occur in a ovary. Ovary is a gonad, female gonad, and testis is a male gonad. It is clear? Then we move toward our main topic, that is a spermatogenesis. Spermatogenesis, I have already explained. It is a process of formation of sperm in a gonad. Then male gonad is testes. So pair of testes present in all vertebrates. Testes form from minute tubules, means inside a testis having number of tubules, that is called as a seminiferous tubules, that lead into vas differentia. The seminiferous tubules separated by internally, means that seminiferous tubules is a circle like rounded, that present in a testis, and in between that rounded, this is a diagram of a seminiferous tubule, you can see here. So this is a seminiferous, this is a half portion, it is like a round and it is separated by, means यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक रहेंगी, यहाँ पे एक रहेंगी, and in between that seminiferous tubule there is a interstitial cell that is called as a Leydig cell also. That function of what Leydig cell? It release hormone testosterone, and testosterone is a male hormone, means that produce, means that because of that hormone it is a secondary sexual जो character होते हैं, जैसे मेल में बियर्ड है, देन मसल्स है, वॉइस क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन, एंड दैट दिस हार्मोन रिलीज बाय दैट interstitial cell, or it is also called as a Leydig cell. Then this is a seminiferous tubules. That seminiferous tubules lead into vas differentia. The seminiferous tubules covered by this basement membrane. This is a basement membrane and it's lined by the germinal epithelial cells. Germinal epithelial cells separate by giant cell. This is, look at here, this is a giant cell, that germinal epithelial cells, means this is a germinal epithelial cells, and it is separated by that giant cell and it is called as a Sertoli cell. Germinal epithelial cell का काम क्या है? It form a sperm. Means germinal epithelial cell का काम क्या है? Formation of sperm. And Sertoli cell का काम क्या है? It nourish growing sperm. ये जो grow होने वाला है, that germinal epithelial cell से sperm grow होने वाला है, इसको growth में जो भी nutrition लगेगा, that Sertoli cell provide that nutrition. Okay, यहाँ तक समझ गया? Then spermatogenesis, it is not a single process, it is divided into two process. First one is a spermatid formation and second is a spermiogenesis. अभी spermatid formation क्या है? तो spermatid formation is a means seminiferous tubules में जो germinal epithelial cell है, that form spermatid. यहाँ तक जो प्रोसेस रहेंगी, it is a process of spermatid formation process, और ये spermatid का conversion sperm में होगा, that is a process of spermiogenesis. Okay, then अभी ये spermatid जो process है, formation of spermatid means germinal epithelial cell convert into spermatid through three process. Which one that three process? This is this multiplication phase, growth phase and maturation phase.
these are three process that all we can say phases through these that germinal epithelial cell convert into spermatogonia. Then you can see here first one process is a मल्टीप्लिकेशन फेज. देखो नाम में इसका लिखा है मल्टीप्लिकेशन. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है लार्ज इन साइज, यहाँ पे जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो अपना साइज बढ़ाएंगी एंड माइटोटिक डिवीजन होगा. मीन्स मल्टीप्लिकेशन फेज है, नाम में ही दिया है मल्टीप्लाई होंगे. और यहाँ पे माइटोसिस, मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आपको माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू टू डिप्लॉइड सेल. वन डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू टू, दैट इज अ माइटोसिस. एंड वन डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू 4 हैप्लॉइड सेल, दिस इज अ मियोसिस. और मियोसिस में 2 बार ये होता है, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस. तो आप लोग ये पढ़ने से पहले एक बार माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये अच्छे से समझ लो और उसके बाद इसके थ्रू जाना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स दैट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कंटिन्यूली डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड फॉर्म दैट सेल. दिस सेल इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, जब ये स्पर्मेटोगोनिया बनेगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज वहाँ तक है. देन नेक्स्ट फेज इज अ ग्रोथ फेज. अभी उसके नाम में दिया, पहले जैसा मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बहुत, और ग्रोथ फेज यानी यहाँ पे ग्रोथ होंगी, जो सेल है दैट उसकी ग्रोथ होगी. मीन्स स्पर्मेटोगोनिया जो बना है उसकी यहाँ पे ग्रोथ होंगी, मीन्स वो साइज में इंक्रीज होगा. इन दिस कंडीशन, जब वो साइज में बढ़ेगा, इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, नाउ से ग्रोथ फेज यहाँ पे कंप्लीट हुई, 2 फेजेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गई, देन ग्रोथ फेज हो गई, देन मैचुरेशन फेज. थर्ड फेज इज मैचुरेशन फेज. इन दिस फेज दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बरं जा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड. अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इन अ मैचुरेशन फेज. एंटर हुआ यानी क्या होगा यहाँ पे, अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इन अ मियोसिस. देखो यहाँ पे दिया है मियोसिस. अभी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में एंटर होने के बाद पहले यहाँ पे देखो डिप्लॉइडिंग कंडीशन है, क्रॉसिंग ओवर मीन्स यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस होगा. एंड देन फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है फर्स्ट मियोसिस में. तो यहाँ पे 2 सेल्स बने हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज जो 2 सेल्स बनेंगे प्राइमरी फर्स्ट मियोसिस से, दिस सेल्स इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. क्लियर. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हमने मियोसिस किया और उसमें फर्स्ट मियोसिस में हमको 2 सेल्स मिले एंड दीज 2 सेल्स आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड इन, देखो यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n है, तो ये 2 सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. देन अगेन मीन्स फिर से मियोसिस सेकंड होगा. देन अगेन दिस each cells are undergo in a second meiotic division and they one cell divide into 2 haploid cells. तो ये 2 सेल्स से बने 4 सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटिड. तो यहाँ पे हमारी पहली जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे हमको स्पर्मेटिड क्या है, मिले हैं. क्लियर. देन दूसरी स्टेज जो है स्पर्मेटिड का कन्वर्शन स्पर्मेटोजुआ में होना है. मीन्स स्पर्मेटिड तो हमको मिल गए हैं बट स्पर्मेटिड कैसे है, एज लाइक अ सेल है. सेल यानी एक तो ये सर्कुलर है, देन न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनल्स है, तो ये मूव कर सकते हैं क्या, नहीं. तो हमको क्या इसे करना क्या है, इसको कन्वर्शन किस में होना चाहिए, दैट स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू, जब स्पर्म में कन्वर्ट होंगे तब ये जाके उसमें टेल फॉर्मेशन होगा. मीन्स स्पर्मेटिड में बहुत सारे चेंजेस होंगे और उन चेंजेस के बाद ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होती है स्पर्मेटोजुआ में. ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो चेंजेस किस में होते हैं, तो देखो न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं यहाँ पे.
जो न्यूक्लियस है ग्रेजुअली डिमिनिशिंग साइज मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा का अभी कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, सभी जो मटेरियल है मीन्स श्रिंक हो जाएंगे या ग्रेजुअली डिमिनिश इन साइज होंगे, जो नहीं चाहिए वो पूरी चीज़ निकल जाएंगी, बस जितने का काम है वही चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। और उसका साइज बहुत कंप्रेस, क्योंकि वो इजीली हल्का होगा तभी इजीली इट कैन मूव एंड टेल फॉर्मेशन होने वाली है। सो जो भी ज़्यादा का है वो पूरा निकल जाएगा और जो चाहिए है वो भी रहेगा, वो भी क्लोजली पैक्ड रहेगा यहाँ पे। सो न्यूक्लियस जो साइज़ है वो डिमिनिश हो जाएगा, साइज उसका वाटर जो है वो लॉस करेगा। देन क्रोमोसोम बिकम कॉन्सेंट्रेटेड एंड पैक्ड रहेंगे। क्रोमोसोम कैसे रहेंगे तो वो पूरे पैक्ड रहेंगे एंड द एक्रोमेटिक सब्सटेंस न्यूक्लियोलस, जैसे कि न्यूक्लियोलस है, आरएनए है, नहीं काम है वो डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियस बिकम इलोंगेटेड। देखो एग्जाम में पूछा जाता है ये एक्रोजोम फॉर्मेशन, यहाँ नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है एक्रोजोम फॉर्मेशन, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं ये 10 मार्क के लिए पूछा जाए तो ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन एक्रोजोम फॉर्मेशन या स्पर्मियोजेनेसिस करके, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो देखो कैसे होता है ये एक्रोजोम कैसे बनता है। गोल्गी बॉडीज सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि गोल्गी बॉडीज क्या है, द डेवलप इनटू एक्रोजोम। जो गोल्गी बॉडीज होती है तो वो डेवलप होती है एक्रोजोम में। इट इज़ अर्ली स्पर्मेटिड, गोल्गी बॉडीज आर इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स अरेंज। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा है कि गोल्गी बॉडी जो है वेसिकल्स के फॉर्म में रहती है, वैक्यूल्स के फॉर्म में रहती है। तो ये जो ऑल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं, दैट ग्रेजुअली फ्यूज टुगेदर, दैट फ्यूज एंड फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज अ एक्रोब्लास्ट। जो छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी एक दूसरे से फ्यूज होंगे और ये कन्वर्शन होगा एक्रोब्लास्ट में। एंड इनसाइड दैट एक्रोब्लास्ट डेंस बॉडी प्रेजेंट रहती है एंड इट इज कॉल्ड एज अ प्रो एक्रोजोमल ग्रैन्यूल्स। मीन्स वो जो वैक्यूल्स फ्यूज होने के बाद इनसाइड उसके जो रहता है उसको बोलेंगे हम प्रो एक्रोजोमल ग्रैन्यूल्स एंड इट इज अ डेवलप। देन होल एक्रोब्लास्ट स्प्रेड ओवर द फ्रंट पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। तो देखो ये जो एक्रोजोमल वेसिकल्स, एक्रोजोमल ग्रैन्यूल है, ये जो भी जिससे बना है वो स्प्रेड होगा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर मीन्स आधे से ज़्यादा 1/3 जो है न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय दैट एक्रोजोम एंड एक्रोजोमल ग्रैन्यूल। देन द एक्रोब्लास्ट इज नाउ इट इज कॉल्ड एज अ एक्रोजोम एंड इट इज़ अ कैप ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जो होता है उसके ऊपर देखो ये एक्रोजोम फॉर्मेशन हुआ है एंड एक्रोजोम न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड एज अ हेड। यानी जो न्यूक्लियस का हेड बनता है एक्रोजोम और इसको दोनों को मिला के बनता है इसका हेड बनता है। हैविंग परफॉर्मेंस इट्स फंक्शंस रिमेन इन अ गोल्गी डिजेनरेट। देखो इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होता है। ये एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब एक्रोजोम टच होता है एग से तब जाके ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स जो होते हैं रिलीज होते हैं और जो एग की वॉल होती है उसको डिजेनरेट करते हैं और वो पेनिट्रेशन मीन्स स्पर्म को एंटर करने के लिए ये हेल्प करते हैं। सो एक्रोजोम का बहुत बड़ा रोल होता है एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में फर्टिलाइजेशन में, पर आपको ये पहले से बता रही हूँ मैं कि फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एक्रोजोम। देन उसके साथ साथ सेंट्रोसोम्स ऑफ स्पर्मेटिड 2 सेंट्रियोल्स। देखो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये जो होता है सेंट्रियोल जस्ट बिहाइंड द, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 सेंट्रियोल्स। एक जो सेंट्रियोल्स होता है जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस के बाजू जाके रहता है और वहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म करता है न्यूक्लियस में। हम जब मैच्योर स्पर्म की डायग्राम देखेंगे तो आप देख सकोगे, जैसे ये यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल ये जो है सेंट्रियोल, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म किया है
और जो डिस्टल सेंट्रियोल है जस्ट बिहाइंड, इसके जस्ट बाजू में जाके देखो यहाँ पे जस्ट इसके बाजू में जाके रहता है सेंट्रियोल। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सियल फिलामेंट्स फॉर्म करता है एंड ग्रेजुअली इलोंगेट एंड फॉर्म टेल डेवलपिंग साइटोप्लाज्मिक शीथ एंड एंड पीस बनाने में ये जो सेंट्रियोल्स की हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी ने फर्स्ट ईयर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, तो हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस, हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो अभी ये स्पर्म बहुत मोटाइल करता है, तो उस वहाँ पे उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी मिलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं एंड टू फॉर्म अ लार्ज मास नियर रीजन ऑफ सेंट्रियोल्स, मीन्स सेंट्रियोल के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं ये यहाँ पे साइड्स में, और इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। इन मैमल में कैसे होते हैं ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं हमको माइटोकॉन्ड्रिया, देखो जिगजैग फॉर्म में अटैच होते हैं, यहाँ पे मीन्स ये जो एक्सियल फिलामेंट्स है सराउंडिंग दैट एक्सियल फिलामेंट्स दे आर स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। एंड उसको दूसरा नाम भी दिया है दैट मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में ही रहते हैं, अराउंड द सरफेस मिडल पीस साइटोप्लाज्म फॉर्म कंडेंस्ड एंड इट इज कॉल्ड एज अ मैनचेट, मीन्स मैनचेट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट जनरेट एटीपी, मीन्स एटीपी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हाँ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट के लिए स्पर्म का काम क्या है, कंटिन्यू मूवमेंट करता है, तो उसके लिए इसका जो है यूज होता है। Then just prior to termination of spermiogenesis, most cytoplasm is a discard from the sperm and cytoplasm flow backwards and form thin layer around the nucleus, middle piece and tail, and end piece of tail remain neck। यानी जो साइटोप्लाज्म है पूरा सराउंडिंग होता है हेड नेक से सराउंडिंग में आ जाता है, बट जो टेल होते हैं वहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं रहता है। स्पर्मेटोजुआ पूरी तरीके से अभी डेवलप हो चुका है। तो स्पर्मेटोजुआ जब डेवलप होता है तो देखो यहाँ पे हमने देखा डेवलपिंग स्पर्मेटोजुआ सर्टोली सेल के तरफ उसका मुंह होता है, और उसकी जो कैविटी है सेमिनिफेरस ट्यूबिल की वहाँ पे उसकी टेल होती है। तो व्हेन दे फुल्ली मैच्योर्ड दे रिलीज, वहाँ से रिलीज होते हैं, मीन्स अभी वो है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूबिल। सेमिनिफेरस ट्यूबिल किस में है, टेस्टिस के अंदर है ना। हमने देखा था कि प्रोडक्शन किस में होता है, गोनेड में होता है कि नहीं, कि हमने बताया कि स्पर्म प्रोड्यूस इन अ टेस्टिस, देन टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और सर्कल में, और उनके बीच में कौन से सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है स्पर्म प्रोडक्शन, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अभी मैच्योर हो गया स्पर्म, तो अभी वो वहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होते ही अभी मैच्योर तो हो गया है, बट वो पूरी तरीके से फिजियोलॉजिकली वो राइप नहीं हुआ है। जब तक वो कुछ टाइम मीन्स जब तक वो पूरा कुछ टाइम बिताता नहीं है इपिडिडाइमिस में, तब तक वो मैच्योर नहीं होता है। मीन्स फिजियोलॉजिकली राइपनिंग ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन अ इपिडिडाइमिस, मीन्स वहाँ पे वो उसको रहना पड़ता है एंड देन ये जाके राइप होता है। पर हर एनिमल का राइपनिंग जो है अलग अलग जगह पे होता है, जैसे फ्रॉग्स में है और फ्रॉग्स में और जो है जो स्पर्म राइपनिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही। तो दिस इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड यू कैन सी मैच्योर स्पर्म। देखो मैच्योर स्पर्म कैसे होता है, दिस इज अ स्पर्म। तो एक्रोजोम जो हमने गोल्गी बॉडी से बना है, एक्रोजोम किससे बनता है, न्यूक्लियस को 1/3 तक एक्रोजोम है, देन न्यूक्लियस है, देन दिस इज अ नेक, दिस इज मिडल पीस एंड टेल। तो एक्रोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब सेंट्रियोल्स है, और उसके सराउंडिंग में देखो एक्सियल फिलामेंट्स यहाँ से आई है, देन इसके सराउंड में ये
माइटोकॉन्ड्रिया है, मीन्स इट प्रोवाइड एनर्जी. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजुआ. एंड व्हाट इज अ फंक्शन? अभी पूरा चैप्टर तो हो गया. देन फंक्शन क्या है आप बता सकते हो? फंक्शन, तो फंक्शन ये है कि ये फंक्शन ये है कि ये एक नया पूरा सेट देते हैं क्रोमोसोम का. देन इट एक्टिवेट टू एग एंड इट नया एक इट एक्टिवेट टू एग एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. तो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है. किसी को भी कुछ क्यूरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली, नहीं समझ में आए तो. थैंक यू.